नमस्कार, प्रश्न फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। जब आप सो रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में इतिहास लिख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी संसद को संबोधित करने पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सदन में मौजूद सांसदों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा संसद गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने की जो रेस शुरू हुई वो बढ़ते चली गई और प्रधानमंत्री मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो जैसे पूरी अमेरिकी संसद उनकी कायल हो गई। 58 मिनट के भाषण में 15 बार सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, 79 बार तालियों की से संसद गूंज उठा। आइए आपको सुनाते हैं अमेरिका की संसद में मोदी अनकट। Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. Mr. Speaker, the foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embraced people from around the world and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who I'm told that the Samosa caucus is now the flavor of the house.
I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. We also remember many others who work for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. Every 100 miles, our cuisine changes from dosa to aloo paratha, and from Sikhan to Sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. Mr. Speaker, when I speak about India's approach to the world, the United States occupy a special place. I know our relations are of great importance to all of you. Every member of this Congress has a deep interest in it. When defense and aerospace in India grow, industries in the state of Washington, Arizona, Georgia, Alabama, South Carolina, and Pennsylvania thrive. When American companies grow, their research and development centers in India thrive. When Indians fly more, a single order for aircraft creates more than 1 million jobs in 44 states in America. When India and US work together on semiconductors and critical minerals, it helps the world in making supply chains.
more diverse, resilient, and reliable. Indeed, Mr. Speaker, we were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. Technology will determine the security, prosperity, and leadership in the 21st century. That is why our two countries established a new initiative for critical and emerging technologies. Our knowledge partnership will serve humanity and seek solutions to the global challenges of climate change, hunger, and health. Mr. Speaker and distinguished members, the last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन के साथ इस वक्त डिनर कर रहे हैं। उनको बाइडेन ने स्टेट डिनर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैपिटल हिल पहुंचने पर पीएम मोदी का कैसे भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में मोदी के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए अमेरिकी कांग्रेसमैन बेताब नजर आए। मोदी के सम्मान में हॉल में एंट्री करने से लेकर पीएम मोदी के भाषण शुरू होने तक सांसद ताली बजाते रहे। पीएम मोदी को उनके भाषण के दौरान 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। मोदी के भाषण की हर गंभीरता का अमेरिकी सांसदों ने स्वागत किया। पीएम का भाषण खत्म होने के बाद उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसद कतार में खड़े दिखाई दिए। पीएम को चारों तरफ से घेर लिया गया और उसके बाद कैसे एक एक ऑटोग्राफ लिया गया, इसकी भी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद को जब संबोधित कर रहे थे, उस वक्त
अमेरिकी सांसद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद होते चले गए, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। पहले तो जब पीएम पहुंचे तो वहां पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, सम्मान में तालियां बजाई गई। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे, उनकी बातों को अमेरिकी सांसद बहुत गंभीरता से सुन रहे थे और उनके सुनने के साथ साथ जो मौका ऐसा लगा जिस पर प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए, कई मौकों पर सांसदों ने प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और बहुत खूबसूरत तस्वीर तब देखने को मिली जब अपना भाषण खत्म कर चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर कई ऐसे सांसद थे जो कि प्रधानमंत्री से हाथ मिला लेने भर के लिए बेताब थे। वो पीएम के पास पहुंचते हैं और वहां पर उनके ऑटोग्राफ की डिमांड करते थे। एक के बाद एक कई सारे जो सांसद रहते हैं उन्होंने ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात है वो ये है कि जो स्टेट डिनर आयोजित किया गया था, वो स्टेट डिनर बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया गया, जहां की तस्वीरें टाइम्स नाम नवभारत ने आपको दिखाई। अब आने वाले वक्त में इस तरह की जो डिप्लोमेसी है उसका क्या और इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। इधर भारत विरोधी विदेशी मीडिया ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस पर सवाल का करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ विदेशी मीडिया की बोलती बंद कर दी, बल्कि व्हाइट हाउस से यह साफ कर दिया कि लोकतंत्र भारत की रगों में बसता है, जहां मजहबी भेदभाव का कहीं कोई स्थान नहीं है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जॉइंट कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। व्हाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम मीडिया कर्मियों से खचाखच भरा था। तभी एक विदेशी पत्रकार ने अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल किया, जिस पर पीएम मोदी ने बखूबी जवाब दिया। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और अब आपको अमेरिका के बोस्टन की तस्वीर दिखाते हैं जो वाकई अद्भुत और शानदार है। दरअसल यूएस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमीनी नहीं बल्कि आसमान से भी जोरदार स्वागत किया गया। यह रिपोर्ट आप देखिए। जमीन ही नहीं, आसमान से भी पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई थी। अमेरिका के बोस्टन के आसमान से आई इस तस्वीर को देखिए। ऊंचे आसमान से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। बोस्टन के आसमान में बाकायदा बैनर लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस बैनर में लिखा था, अमेरिका के स्टेट विजिट पर आपका स्वागत है पीएम मोदी। पीएम मोदी के 3 दिन के दौरे के दौरान न्यूयॉर्क से लेकर वाशिंगटन डीसी तक भारतीय मूल के लोगों में उनकी दीवानगी नजर आई। उनकी एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए। पीएम मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो वहां भी यही हाल दिखाई दिया। व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग मौजूद थे। मोदी मोदी के नारों से व्हाइट हाउस का परिसर भी गूंजता नजर आया। स्टेट विजिट पर व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने वहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी वहां मौजूद बाकी अमेरिकी नेताओं से भी मिले। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। एक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का
स्पष्ट प्रमाण है। भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की लिखी एक कविता भी सुनाई, जिसे सुनकर अमेरिकी संसद तालियों से गूंज उठा। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी ने करीब 1 घंटे की स्पीच दी। इस दौरान अमेरिकी सांसदों ने बड़े गौर से पीएम मोदी को न केवल सुना, बल्कि स्पीच के दौरान करीब 15 बार खड़े होकर उनका सम्मान किया। कई बार तालियां बजाकर इस बात की तस्दीक की कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है। अपने संबोधन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, अब संस्थाएं भी बदलनी चाहिए, सभी देशों की बात सुनी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी लिखी कविता अभी तो सूरज उगा है का भी जिक्र किया। इस कविता में हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। मोदी के भाषण के दौरान बीच बीच में अमेरिकी सांसदों ने तालियां बजाकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। भाषण के अंत में अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी लिए। इस दौरान दोनों सदनों के सांसदों को बेहद खुश देखा गया। तो मंच कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां छा जाते हैं। देश हो या विदेश, उनका हर दौरा उत्साहित करने वाला होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हर एक मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब नजर आए। देखिए दोनों के बीच की ये बेहद शानदार केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये दौरा भी बेहद खास है। पहली बार राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए, जहां प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बॉडी लैंग्वेज पर बात हो रही है। तस्वीर देखने से साफ पता चलता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से मिलने के लिए काफी बेताब दिखे। प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जो बाइडेन खुद आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी से मिले। इस दौरान डेलीगेशन मीट के दौरान जो बाइडेन मोदी के एक पुराने दोस्त की तरह नजर आए। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे नजर आए। व्हाइट हाउस के गलियारे में पीएम मोदी की चाल और बाइडेन से बातचीत का अंदाज काफी सहज नजर आया। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अमेरिका और भारत के सर्वोच्च नेता जब बातचीत की टेबल पर बैठे तो मोदी बाइडेन की जोड़ी को दुनिया देखती रह गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक बात को राष्ट्रपति जो बाइडेन बड़े ध्यान से सुनते नजर आए। कैपिटल हिल में भी नरेंद्र मोदी छाए रहे। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐसा समा बांधा कि अमेरिकी संसद में उन्हें पूरे 14 बार स्टैंडिंग ओवेशन से नवाजा गया, जबकि 60 बार से ज्यादा तालियां बजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है। इस दौरान की कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती पहले से कहीं और गहरी और मजबूत होती जा रही है। अमेरिका पहुंचने के बाद से लेकर अब तक 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, इसकी एक झलक आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा बेहद ही ऐतिहासिक रहा। अमेरिका में पीएम मोदी की पहली राजकीय यात्रा की हर तस्वीर बेहद खास और दिलचस्प रही।
दिन भर पीएम मोदी अलग अलग कार्यक्रम में नजर आए। पीएम मोदी सबसे पहले व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन ने ग्रैंड वेलकम किया। इसके बाद मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिकी संसद में पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और अंत में पीएम मोदी बाइडेन के स्टेट डिनर में शामिल हुए। इसके एक दिन पहले पीएम मोदी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे, तब यहां भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिस वक्त पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे, उस वक्त जोरदार बारिश हो रही थी और इस बारिश के बीच पीएम मोदी का जॉइंट बेस एंड्रयूज पर फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ ग्रैंड वेलकम हुआ। वॉशिंगटन डीसी के होटल में भी भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। इससे पहले जब पीएम मोदी भारत से करीब 15 घंटे की उड़ान भरकर न्यूयॉर्क पहुंचे, तो वहां का माहौल भी मोदी मोदी के नारों से गूंजता दिखा। एयरपोर्ट से लेकर पीएम मोदी के होटल तक भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के लिए खड़े दिखाई दिए। इक्कीस जून को जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, तब पीएम मोदी ने इसका नेतृत्व यूएन मुख्यालय में किया और एक नया विश्व कीर्तिमान बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अमेरिका रिश्तों को नए आयाम पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जो करीब 2.5 घंटे तक चली। द्विपक्षीय वार्ता खास क्यों रही, उसे समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय के द्विपक्षीय बातचीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन जॉइंट स्टेटमेंट देने आए, तो साफ हो गया कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हो गए हैं। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अमेरिका की साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि भारत में अमेरिका 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी साफ किया कि सिएटल में भी भारत एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। खास बात यह थी कि दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद और कट्टरवाद पर भी चर्चा हुई। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद अब ये साफ हो गया है कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर असीमित क्षमता वाले साझा भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं, जिसका असर दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया पर नजर आएगा।